My dear friends, today the Lord says you can ask Him for anything and He will give it to you. मेरे दोस्तों, आज प्रभु कहते हैं कि आप उनसे कुछ भी मांग सकते हैं और वह आपको वो देंगे। Yes, when we ask for anything according to His will, the Lord promises us that He will grant it. हाँ, जब कभी हम प्रभु की इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वे वादा करते हैं कि वे उसे पूरा करेंगे। Let's read the verse from 1 John 5:14. आइए हम पहला यूहन्ना 5:14 के इस वचन को पढ़ें। If we ask anything according to His will, He hears us. यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। Yes, so many times we pray according to our plans. हाँ, कई बार हम अपनी ही योजनाओं के अनुसार प्रार्थना करते हैं। We have something planned out for us. We want to get married at this age. We want to finish our degree at this age. And we want God to work according to our plan. हमारी अपनी योजना होती है, हम एक उम्र में शादी करना और अपनी डिग्री पूरी करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे अनुसार काम करे। But when we submit everything into the Lord's hands, the Lord says that He will make even the impossible possible. लेकिन जब हम सब कुछ प्रभु के हाथों में सौंप देते हैं तो प्रभु कहते हैं कि वे असंभव को भी संभव बना देंगे। Today, are you struggling with something that is impossible in your life? क्या आज आप अपने जीवन में किसी असंभव सी समस्या से जूझ रहे हैं? Are you struggling to conceive a child for a long time? क्या आप लंबे समय से गर्भधारण करने में संघर्ष कर रहे हैं? Today you might be in tears thinking, Lord, all my family members who got married along with me are blessed with children. आज आप शायद आंसू बहाते होंगे यह कहते हुए कि जिनकी शादी आपकी शादी के दौरान हुई उन सब की संतान हो चुकी My है। friends who got married are having children. मेरे दोस्तों में जिनकी शादी हो चुकी है उनके पास भी संतान हैं। But why should I struggle? लेकिन मुझे संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है? Today ask the Lord. आज परमेश्वर से मांगिए, Ask the Lord. प्रभु से मांगें, And the Lord will surely bless you. प्रभु आपको निश्चय ही आशीष देंगे। We heard a wonderful testimony in the Bethesda special blessing meeting. बेथेस्दा की विशेष आशीष सभा में हमने एक अद्भुत गवाही सुनी। A couple came and they said that they have been married for 10 long years. एक दंपत्ति आए और उन्होंने बताया कि उनकी शादी को 10 साल हो गए। Every time the wife will get pregnant and within a few weeks the baby will die. हर बार जब पत्नी गर्भवती होती तो कुछ ही हफ्तों के बाद वो बच्चा उनके गर्भ में मर जाता। This happened 2-3 times. ऐसा 2 या 3 बार हो चुका था And they were so heartbroken. और वे मन में बहुत खेदित और दुखी थे। I know many of you might be in that situation. मुझे मालूम है कि आप में से कई ऐसी ही स्थिति में होंगे। You are not able to carry a pregnancy till term. आप उस गर्भावस्था को पूरी करने में असमर्थ होंगे। People are making fun of you. लोग आपका मजाक उड़ाते होंगे You are heartbroken. और आपका हृदय टूट चुका होगा। They were also in the same situation. वे भी बिल्कुल ऐसी ही स्थिति में थे। They came to the Bethesda Prayer Tower in 2023. 2023 में वे बेथसेदा प्रार्थना भवन में आए। And when uncle and auntie prayed over them, they prophesied saying, next year you will have a beautiful baby. और जब अंकल और आंटी ने उनके लिए प्रार्थना की तो उन्होंने भविष्यवाणी करते हुए कहा, अगले साल आपको एक सुंदर बच्चा होगा। And believe it or not, the exact time next year the Lord blessed them with a wonderful boy baby. और यकीन मानिए अगले साल ठीक उसी समय प्रभु ने उन्हें एक प्यारे से बेटे का आशीर्वाद दिया। A baby after 10 long years of waiting. 10 साल के एक लंबे इंतजार के बाद में संतान की प्राप्ति। Even though they had given up, the Lord blessed them with the impossible. हालांकि उन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी लेकिन प्रभु ने उनके असंभव को संभव कर दिया। Yes, today the Lord tells you the same thing, my dear friend. मेरे दोस्तों, आज प्रभु आपको यही बात कहते हैं। Don't compare your life with others. अपने जीवन की तुलना दूसरों के साथ ना करें। Don't compare your career with others. अपने कैरियर की तुलना दूसरों के साथ ना The करें। Lord has a great blessing in your life. परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए महान आशीषें रखी हैं। Let's submit our life and pray together. आइए अपना जीवन प्रभु को सौंपें और मिलकर प्रार्थना करें। Thank you, Lord, for this wonderful promise, Father. हे पिता, इस अद्भुत प्रतिज्ञा के लिए आपका धन्यवाद प्रभु। Lord, I pray especially for couples who are waiting for a मैं child. प्रार्थना करती हूँ उनके लिए जो संतान प्राप्ति की प्रतीक्षा में Lord, हैं। bless them with a child today. आज ही उन्हें एक संतान से आशीषित करें। Let this blessing come upon them. ये आशीष उन पर उतर आए। Let them receive this blessing today. आज ही वे इस आशीष को प्राप्त करें। And next year, let them come and testify, Father. और पिता, अगले वर्ष आकर वे इसकी गवाही दे पाएं। Let there be no more tears. अब और आंसू बहाना ना हो, Only miracles and blessings. केवल चमत्कार और आशीषें। Lord, I also pray for people who are having a difficult time in their career. प्रार्थना करती हूँ उनके लिए जो अपने कैरियर में मुश्किलों का सामना कर रहे They are हैं। not able to go to the next step. वे अगले स्तर पर नहीं पहुँच पा रहे हैं। So much of struggle.
बहुत संघर्ष है। Let everything be so light from today. आज से सब कुछ बड़ा आसान हो जाए। Let the impossible become possible. असंभव संभव में तब्दील हो जाए। Change all their lives today, हे Father. पिता, आज ही से उनके पूरे जीवन को बदल दें। In Jesus' name I pray. Amen. यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती, आमीन। Yes, my dear friends, the Lord is going to do the impossible in your life today. हाँ मेरे दोस्तों, आज प्रभु आपके जीवन में असंभव को संभव करने जा रहे हैं। Also visit our Bethesda prayer tower and receive miracles. हमारे बेतesda प्रार्थना भवन पर आएं और चमत्कार प्राप्त करें। It has personally been a great place for me. Every time I go with a prayer request, within a few months I come back with thanksgiving. मेरे लिए यह एक अद्भुत जगह है। जब भी मैं वहाँ प्रार्थना करने जाती हूँ, कुछ दिन बाद मैं वहाँ लौटती हूँ धन्यवाद देने। God will also do the same to you. प्रभु आपके लिए भी ऐसा ही करेंगे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। क्या आप ये सब सुनकर थक चुके हैं? कोई नौकरी नहीं, आवेदन अस्वीकृत, पद भर चुका है। अगली बार किस्मत आजमाएं। नौकरी के लिए परमेश्वर की मदद चाहिए? नौकरी में सफलता का इंतजार, बेहतर नौकरी के लिए प्रार्थना, बेहतर भविष्य के सपने। उम्मीद ना छोड़ें। जब सारे दरवाजे बंद लगे तो परमेश्वर वो दरवाजा खोल सकते हैं जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। अस्वीकृति को अपने भविष्य को परिभाषित ना करने दें। इस स्वतंत्रता दिवस पर जीसस कॉल्स के बिल्कुल नए ऑनलाइन प्रार्थना समारोह में शामिल हों, जो 15 अगस्त को सुबह 11 बजे से जीसस कॉल्स के YouTube, Facebook और Instagram चैनलों पर लाइव प्रसारित होगा। डॉक्टर पॉल दीनाकरण और सैमुअल दीनाकरण द्वारा विशेष प्रार्थना, स्टेला रमोला और डैनियल डेविडसन द्वारा आराधना। आपकी सफलता एक प्रार्थना से शुरू हो सकती है। अपनी प्रार्थना निवेदन हमारे साथ बांटें। ऑनलाइन प्रार्थनाएं प्राप्त करें। एक प्रार्थना आपका भविष्य बदल सकती है। Precious Isabella Baghe, thank you so much for your thank offering, which is a blessing to millions of people. प्रिय इजाबेला बाघे, आपके धन्यवादी भेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह तो लाखों लोगों के लिए आशीष का एक कारण है। According to Jeremiah 31:16, your work will be rewarded, declares the Lord. यिर्मयाह 31:16 के अनुसार परमेश्वर कहते हैं कि आपके परिश्रम का फल आपको निश्चय ही प्राप्त होगा। Father, bless Isabella with a wonderful life partner, Lord. Do a miracle and give her divine knowledge, blessing in the job, and great increase and promotions. Prosper her. हे पिताओं, इजाबेला को एक बेहतरीन जीवन साथी दीजिए, चमत्कार कीजिए प्रभु, और उसे अलौकिक ज्ञान, नौकरी में आशीषें और अपार तरक्की और पदोन्नति दीजिए। उसे समृद्ध कीजिए। Hosanna Baghe, her wisdom and an excellent job placement, Lord. Please do it. हे प्रभु, होसन्ना बाघे को बुद्धिमता और उन्हें उत्तम नौकरी मिले। कृपया ऐसा ही करें प्रभु। Brother Sushil Kumar and Sister Jubilee have divine health and spiritual grace and protection on all the family members. In Jesus' name, Amen. भाई सुशील कुमार और बहन जुबली के परिवार के सभी सदस्यों को अलौकिक स्वास्थ्य, आत्मिक अनुग्रह और सुरक्षा प्राप्त हो। यीशु के नाम से आमीन। God bless you. Precious Sister Pinky Srinila Tadu, we remember your beloved brother-in-law, late Stephen Hansta, on his 5th anniversary. प्रिय बहन पिंकी श्रीनीला, हम आपके प्रिय स्वर्गीय स्टीफन हंसदा की 5वीं पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हैं। God has sustained your family for 5 years. May the Lord increase in you and guide you still further. परमेश्वर ने 5 वर्षों तक आपके परिवार का भरण पोषण किया है। प्रभु आप सबों को बढ़ाए और निरंतर आपका मार्गदर्शन करता रहे। May there be peace within your walls and security within your citadels, according to Psalm 122:7. भजन संहिता 122 वचन 7 के अनुसार तेरे शहर पनाह के भीतर शांति और तेरे महलों में कुशल होवे। Father, bless Malti Marandi with divine peace, divine protection, and spiritual grace. हे पिता, मालती मरांदी को ईश्वरीय शांति, अलौकिक सुरक्षा और आत्मिक अनुग्रह से आशीर्वादित कीजिए। Gladius and Glory, a wisdom beyond understanding and a golden future. ग्लैडियस और ग्लोरी असीम ज्ञान और एक उज्जवल भविष्य प्राप्त करें। Dear Sister Pinky and Brother Lukiram Murmu,
have divine blessings in the ministry and increase. प्रिय बहन पिंकी और भाई लोकीराम मुर्मू, आप सभी को सेवा कार्य में परमेश्वर की अलौकिक आशीषें और सफलता की प्राप्ति हो। Anurag have great success in the 12th and excellent career blessing too. In Jesus' name, Amen. अनुराग को 12वीं कक्षा में खूब सफलता मिले और उसका कैरियर भी शानदार हो, यीशु के नाम से आमीन। God bless you. Precious Rashmi Nathaniel, thank you so much for your thank offering, which is a blessing to millions of people. अति प्रिय रश्मि नथानियल, आपके धन्यवादी भेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह तो लाखों लोगों के लिए आशीष का कारण है। According to 1 Chronicles 22:11, may the Lord be with you. May you have great success. पहला इतिहास 22:11 के अनुसार परमेश्वर आपके साथ रहे और आपको अपार सफलता की प्राप्ति हो। Father, bless Rashmi Nathaniel with grace to get the PG seat in medical in the name of Jesus by the power of the Holy Spirit. हे पिता, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य द्वारा और यीशु के नाम से रश्मि नथानियल को चिकित्सा स्नातकोत्तर में प्रवेश दिलाने की कृपा प्रदान करें। Let her be healed. Stomach be healed. Every organ be healed. No more acidity and stomach problems. Let the headache also stop and the heartburn healed. उसे चंगा करें, पेट की समस्या से उसे चंगाई दें, उसके सभी अंग स्वस्थ हो जाएं, गैस और पेट की समस्या दूर हो जाए, सिर दर्द भी बंद हो जाए और सीने की जलन ठीक हो जाए। Right now in Jesus' name, let the healing power from Jesus flow into her and release her. Thank you for doing it, Lord. अभी इसी घड़ी यीशु के नाम से चंगाई की शक्ति उसमें प्रवाहित हो और उससे आप छुटकारा दें प्रभु। हे प्रभु, ऐसा करने के लिए धन्यवाद। Sister Reena and Brother Manoj Nathaniel have good health and all the joy of heaven in Jesus' name. Amen. बहन रीना और भाई मनोज नथानियल स्वस्थ रहें और स्वर्ग के सभी आनंद उन्हें प्राप्त हों, यीशु के नाम से आमीन। God bless you.